Okay, good morning, everybody. Now let us start with the buyback lecture number 2. Okay, see to it over here. In last lecture, I have given in homework. What was the homework? From buyback home assignment. I have given question number 1 and question number 2. So, chalo, answer check कीजिए. Question number 1. Here, that is a similar kind of question. Just figures change हुए. ठीक है. Entries will be bank. Loss है, so directly P&L to investment. Equity share premium on buyback to equity share buyback. Now we are going to adjust this premium to security premium, or you can pass that combined entry also, and then through bank we will repay them back, and we are supposed to create CRR for 600, which will be created from revenue reserve. So this is your answer. Very simple. Okay, is this clear? Next example, question number 2. In question number 2 also same kind of thing. Bank, P&L to investment, equity share premium on buyback to equity share buyback. We have adjusted premium to security premium account, revenue to CRR. Now I have one question over here. What? In CRR, face value of share bought back is 500, rupees in 1000, 5 lakh, and we have transferred to CRR only 3 lakh. Why? Here, because preference share is issued for this. yes, preference share issued 2 months back for the purpose of buyback 200. Issued 2 months back for the purpose of buyback. यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बायबैक के आफ्टर बायबैक ओनली यू आर सपोज टू इश्यू द प्रेफरेंस शेयर. देयर इज नो सच कंडीशन. यू कैन issue preference share first and then go for buyback, but as long as that particular thing preference issue is for the purpose of buyback, okay, so that is that much amount of CRR is not created. Okay, तो हमें CRR उतना कम क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. And the balance sheet schedule 3 format: share capital, reserves and surplus, not 1 2, current liability as it is. Here non-current asset, property plant equipment, current assets as it is, and see notes. See the presentation they are doing, you need to do it properly. Okay, and reserves and surplus. Is that clear? Okay, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे. ठीक है, चलो. Now we'll be back. So now you are very much clear regarding entries of the buyback, redemption of preference shares and bonus. इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है? We need to see at practical condition which I have given over here. What? 3 tests we are supposed to consider it over here. 3 tests, very important 3 tests. I used to tell these 3 conditions are very important. Many a times they used to ask question considering these 3 tests. And obviously in July 2021 15 marks का जो क्वेश्चन आया था, यही 3 टेस्ट का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, 15 मार्क्स. ओके, जनरली 10 मार्क्स में आते न्यू सिलेबस में. 15 मार्क्स थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ओके, नो इश्यूज. Now see, we are supposed to 68.1. चलो रिकेप कर लेते हैं. बायबैक में 68.1 सोर्सिंग ऑफ बायबैक. सोर्स कौन सा आएगा? 3 सोर्सेज यू कैन यूज: फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स, अदर क्लास ऑफ शेयर्स. अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो इतनी अमाउंट की आपको CRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो
whatever source you are using from free reserves or security premium, for that much amount you are supposed to create the CRR. White section 69(1). 68(1) में सोर्सिंग दिया है, 68(2) में कंडीशन। 68(2) कंडीशन, तो कंडीशन में आर्टिकल्स ऑथोराइज होना चाहिए। नंबर 2, कंपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगी फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत कब नहीं है? सो मैक्सिमम बायबैक सीलिंग इज 25%, बट इफ योर बायबैक अमाउंट इज 10% or less than 10% of paid up capital of free reserve, then you are not supposed to pass special resolution in general meeting. Rather, board of director की मीटिंग में board resolution पास कर दो, इनफ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, 3 प्रैक्टिकल कंडीशन। नंबर 1, रिसोर्स टेस्ट। नंबर 1, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या बताता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट of buyback should be 25% of paid up capital and free reserve. Paid up capital and free reserve का 25% maximum amount of buyback in terms of amount. Resource test. Share outstanding test. Maximum numbers will be 25% of shares. Okay, and after buyback that equity ratio should not exceed 2:1. So now we are supposed to satisfy these 3 tests. और ये तीनों टेस्ट में से जिस टेस्ट में सबसे कम नंबर्स आते हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम हम उतने शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी थियोरेटिकल कंडीशंस है। ओके, तो नाउ सी एग्जांपल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 ओपन करो। इज लाइक दिस। जस्ट अ मिनट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अभी। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन 31 March 2012. So we have equity share capital, that is numbers. If you see in terms of numbers, 1,25,000 shares of rupees 10 each. Okay. Revenue reserve 15 lakh free है. Security premium for the purpose of this buyback you will consider it because sourcing it is allowed. P&L free. So these are your reserves. This is your paid up capital. You need to have a total of it. This is your debt. 12% debenture debt, unsecured loans and current liability. These all are to be treated as debt for the purpose of debt equity ratio. Okay, in that equity ratio we are going to take all outside liabilities over here for the purpose of buyback. Yes, and we have fixed asset, current asset. Now see, company wants to buy back 25,000 equity shares of 10 each on 1st April 2020 at ₹20 पर शेयर। अभी देखिए, बायबैक की जो फेस वैल्यू है दैट इज, बायबैक की जो फेस वैल्यू है दैट इज 10, शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 है, बायबैक प्राइस है 20, मीन्स 10 रुपीज विल बी योर प्रीमियम ऑन बायबैक। इज इट? बायबैक इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, कंडीशन ऑफ आर्टिकल सेटिस्फाइड, necessary resolution pass, payment for the buyback will be made out of a company out of bank balance available. तो current assets में बैंक बैलेंस अवेलेबल है, उसकी चिंता मत की। Comment with your calculation whether buyback of shares by company is within the provision of Companies Act, within the provision of Companies Act। अभी देखिए, buyback is within the provision. And one more word I would like to highlight, wants to buy back. अभी ये सारी 3 कंडीशन में ये थर्ड सम में ही क्यों करवा, फर्स्ट में क्यों नहीं किया, हमने सेकंड में क्यों नहीं किया? हमने तो 2 सम किए, ठीक है। यहां पे भी हमने बायबैक किया, यहां पे तो हमने वो कंडीशन चेक ही नहीं की, 25% पेड अप कैपिटल है नहीं, 25% नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं है, बिकॉज over here
they have not asked these three conditions. सर कैसे पता चलेगा? See, simple language. It also bought back. अभी bought back करने के बाद आपको पूछने आएंगे तो कंडीशन क्या थी, बोलिए. नहीं, ऑलरेडी कंपनी ने बॉट बैक कर लिया है, आपको सिर्फ एंट्रीज पूछी है और बैलेंस शीट बनानी. ठीक है, सो यहां पे क्या है, बॉट बैक ऑलरेडी डन. So we are not supposed to go for checking test 1, 2, 3. Just pass the entry and prepare the balance sheet. Question number 2. Company announced buyback. Buyback target for the buyback is already achieved. कंपनी ने बायबैक कर लिया है, आपको ये नहीं पूछा है बायबैक करे या ना करे, कितने करे शेयर्स. ओके, बायबैक विद इन कंपनीज एक्ट है या नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं है. मैंने बोला हमें पता है क्या है. ओके, हमने बायबैक कर लिया है, आप सिर्फ एंट्री पास करो. ठीक है, अभी थर्ड में क्या बताते, देखिए, द कंपनी वांट्स टू बायबैक. अभी बायबैक किया नहीं है, कंपनी को बायबैक करना है, और फॉर दैट वेरी रीजन वो आपसे पूछ रहे हैं विथ योर कैलकुलेशन कि क्या बायबैक कंपनीज के एक्ट विद इन है या नहीं. तो यहां पे वो टेस्ट आएंगे, यस, और यहां पे हमें टेस्ट करना है, यस, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3. ओके, इज दैट क्लियर? सी, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं हमें टेस्ट करना है या नहीं करना है. ठीक है, तो ये सिंपल थिंग है. इफ यस, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक एंड प्रिपेयर. फिर बाद में जर्नल एंट्री तो करनी ही है, बैलेंस शीट भी बनानी ही है. ठीक है, बट पहले आप चेक करो कि बायबैक विद इन लिमिट है या नहीं. अभी वो जो 3 टेस्ट है ध्यान से देखना. ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? सो ओवर हियर दिस 20 rupees is your buy back price and premium will be 10 rupees. Okay, chalo, we'll go for test 1. अभी टेस्ट 1 क्या है, 2 बाइफिकेशन करते हैं. टेस्ट के नाम भी दिए मैंने, रिसोर्स टेस्ट. In that case, paid up capital कितनी है, 12,50,000. $12,50,000 plus free reserves. In that case, we have revenue, security premium and P&L. Okay, तो वो कितने हैं हमारे पास, 15 lakh, 250 and 125. Now give me the total of all. Total of all means including 1250. Total of the paid up capital and free reserve. Total of the paid up capital plus free reserves. चलो कितने आएंगे, $31,25,000. Okay, is that clear? Now क्या है फर्स्ट टेस्ट, 20 मैक्सिमम सीलिंग क्या है बायबैक के लिए, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. तो 25% मैक्सिमम. ओके, तो चलो इसका 25% करो, कितना आएगा, मैक्सिमम इट विल बी 25%.
7,81,000. 781,250. और आप हमारा बायबैक प्राइस क्या है, हमें बायबैक कितने में करना है, बायबैक प्राइस 20. तो बायबैक अमाउंट मैक्सिमम यू कैन हैव 7,81,250 एंड बायबैक प्राइस इज 20. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 39,062.5. ओके, राउंडेड ऑफ 62. तो दैट इज योर फर्स्ट टेस्ट. चलो हमने फर्स्ट टेस्ट तो पास कर लिया. हमें कितने शेयर बॉट बैक करना है, कितने शेयर, हमें 25,000 शेयर्स बॉट बैक करने हैं. तो फर्स्ट टेस्ट में तो वी आर विद इन. ओके, टेस्ट नंबर 2. टेस्ट नंबर 2. टेस्ट नंबर 2 is a share outstanding test. Okay, in that case, total number of shares presently we are having. See, you are supposed to consider total number of shares as on the buyback. उसमें सारे के सारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो कितने शेयर्स है अभी, 125 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. और मैक्सिमम कितने आएंगे, 25% मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये टेस्ट काफी आसान. ठीक है, जस्ट सिंपली डू 25%. सो दैट विल बी so that will be 31,250. yes. अभी टेस्ट 3. सी टेस्ट 3 में आप को ध्यान देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और यहां पे टेस्ट 1 और 2 आपने साथ साथ लिखे हैं, कोई इश्यू नहीं है. टेस्ट 3 में यू जस्ट होल्ड इट, बिकॉज टेस्ट 3 का मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि टेस्ट 3 कैसे करते हैं. और वो लॉजिक के लिए मैं पहले उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी दिखाऊंगा, फिर वो इरेज करूंगा और फिर आपको उसका लॉजिक बताऊंगा. ठीक है, तो टेस्ट 3. टेस्ट 3 का पूरा लॉजिक जानिए. टेस्ट 3 क्या है, डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो should be less than or equal to 2:1. मतलब वो मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:2. तो पहले इसके लिए हमें डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो, एट प्रेजेंट हमारे पास कितना टोटल डेट है, तो दैट इज ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी. ओके, हमें क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी. ओके, टोटल ऑफ ऑल द outside liability. So over here 12% debenture 18,75,000. okay, then after unsecured loan 10 lakh, then after current liabilities 16,50,000. So give me the total debt. 45,25,000. 45,25,000. अभी ये क्या है, ये टोटल डेट है. अगर हम मैक्सिमम डेट टू इक्विटी रेशियो के मुताबिक जाते हैं, ठीक है, तो डेट टू इक्विटी, दिस इज योर टोटल डेट. इफ यू कंसिडर डेट एज 2, what should be your proposed equity? Propose माने आप, see when I say equity and when I say equity share capital, lot of different is there. Okay, when I say equity share capital, it means it will be included equity share only. But when I say equity, it means it includes simply paid up capital free reserve, everything which is over here.
paid up capital, free reserve, everything will be included in equity for the purpose of this test number 3. Okay. तो अगर हमें डेट इक्विटी रेशियो रखना है 2:1 मैक्सिमम, तो हम मिनिमम इक्विटी कितनी रख सकते हैं? दिस इज द लोवेस्ट और मिनिमम इक्विटी यू कैन कीप. दिस इज द लोवेस्ट और मिनिमम इक्विटी यू कैन कीप एज 1, बिकॉज हाइएस्ट डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2:1. So debt 45, 25, इक्विटी 1. तो 2 के अगर 2 डेट है तब अमाउंट आएगी 45, 25. तो 1 इक्विटी है तो अमाउंट कितनी आएगी? चलो सॉल्व कीजिए. तो व्हाट विल बी योर प्रपोज्ड मिनिमम इक्विटी? 22 लाख 62,500. दिस इज द मिनिमम इक्विटी. ओके, मतलब ये जो इक्विटी है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसकी जो लोवेस्ट अमाउंट है वो है 22,62,500. इससे हम डाउन नहीं कर सकते. अभी राइट नाउ प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? अभी राइट नाउ प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? सेम थिंग. अभी देखिए यहां पे जो मैंने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 3 में मैं इक्विटी कंसीडर करूंगा, दोनों सेम आएंगे. मतलब नॉर्मली हम इक्विटी में सारी की सारी रिजर्व सरप्लस लेते हैं, फिर वो फ्री है या नहीं है, ठीक है. बट यहां बायबैक के लिए, टेस्ट 1 के लिए, टेस्ट 3 के लिए हम जो इक्विटी कंसीडर करेंगे वो होंगे पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ओनली. ओके, सो दैट्स द सेम थिंग, 31,25,000. समझ में आया? ओके ओके, क्लियर चैट? क्लियर है? सी, डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम 2:1 है. उससे ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो हमें नहीं करना है बायबैक के बाद, ठीक है. अभी मेरी जो प्रेजेंट इक्विटी है वो क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, whenever equity word is used, we are going to consider paid up capital and free reserves only. मतलब अगर आपके पास और कोई रिजर्व है जो फ्री नहीं है, ठीक है, तो वो नॉर्मली इक्विटी में तो कंसीडर होती है, बट यहां पे बायबैक की टेस्ट 1, 3 में कंसीडर नहीं हो. यहां बायबैक में हम इक्विटी मींस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो टेस्ट 1 में करेंगे वही टेस्ट 3 में करेंगे, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व. ओके, नाउ प्रेजेंट इक्विटी है हमारे पास 31,25. अगर हम बायबैक करते हैं तो हमारी इक्विटी भी रिड्यूस होगी और हमारी रिजर्व्स भी रिड्यूस होगी. रिजर्व क्यों रिड्यूस होगी सर? इक्विटी तो रिड्यूस होगी क्योंकि इक्विटी शेयर तो बायबैक करना है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक. अगर हम बायबैक करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो रिड्यूस होगी, साथ में अगर हम प्रीमियम से बायबैक करते हैं, यहां पे करते हैं यस, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिड्यूस होगा. और अगर ये बायबैक के सामने आपने प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं किया, देन यू आर सपोज टू ट्रांसफर द अमाउंट टू CRR also. Is that clear? Okay, so how much maximum reduction is possible? Tell me. Logic. If you understand this logically, तो बहुत ही आसान. मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट में लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले लॉजिकली, ठीक है. ओके, तो प्रेजेंट इक्विटी है 31,25. बायबैक हम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? क्योंकि इक्विटी को आप कितना रिड्यूस कर सकते हो? अप टू 22,62,500 ओनली. सो गिव मी द फिगर ऑफ मैक्सिमम रिडक्शन. गिव मी द फिगर ऑफ मैक्सिमम रिडक्शन. जो ये लॉजिक में मैं थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है, शांति से समझना. चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम रिडक्शन ओवर हियर?
जस्ट माइनस करो 31,25,000 माइनस 22,62,500, तो कितना मैक्सिमम रिडक्शन आएगा? $8,62,500. 8,62,500. This is your maximum. This is your maximum reduction. इतना समझ में आया? ओके ओके अभी ये जो रिडक्शन है बस यहीं तक ही लिखना, अब आगे से लिखना मत, ठीक है? क्योंकि अब मैं जो आपको सिस्टम करवाने जा रहा हूं उसमें पहले क्या मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फिर बाद में हम करेक्शन करेंगे उसका। तो मैक्सिमम रिडक्शन है 862,500। अभी एक काम करो, बायबैक प्राइस क्या है? बायबैक प्राइस क्या है? 20। अभी इसको 20 से डिवाइड कीजिए तो कितने शेयर्स आते हैं? अगर आप ऐसा सोचेंगे कि 862,500 है, वो हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जैसा हमने यहां पे किया, ठीक है? यहां पे तो इसलिए किया क्योंकि एनीवे वी आर सपोज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। बट चलो मान लीजिए आपने यहां पे भी 20 डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर्स कितने आएंगे बायबैक के मैक्सिमम? 43,125. Okay, now this is a wrong figure, but I would like to explain you the logic, so I am going further. Okay, now अभी ये सम भूल जाइए, ठीक है? ये नंबर्स भूल जाइए, ये नंबर्स भी भूल जाइए कि 25,000 शेयर्स हमें बॉट बैक कर, सिर्फ लॉजिक पे ध्यान। मान लीजिए कि हमें 43,125 शेयर्स बॉट बैक करने हैं, तो पहले बायबैक की एंट्रीज बताइए क्या होगी। चलो अभी बायबैक की एंट्रीज पहले लिख लेते हैं हम। एंट्रीज फॉर द बायबैक, फर्स्ट वन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, नाउ कंसीडर द बायबैक इज 43,125। ओके, 43 हमें एंट्रीज पास करनी है 25,000 शेयर्स की, बट यहां पे मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाता हूं कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है? तो जस्ट हैव अ पेशेंस, ओके, एंड लिसन टू इट केयरफुली। फिर हम 25,000 से एंट्री कर देंगे, डोंट वरी, ओके? अभी लिखना मत कुछ, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अभी नंबर ऑफ शेयर्स है 43,125 मैक्सिमम, हमने पूरे के पूरे मैक्सिमम शेयर्स उतने बायबैक कर लिए, ठीक है? तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 10, ओके, टोटल 20 रुपीज। चलो तो यहां पे आएगा 43,125। सिक्योरिटी प्रीमियम, हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे? 43,125। बट यहां पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम इनफ नहीं है, ओके, नो इश्यू। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम हम 250 यूज करेंगे, और बाकी का कहां से यूज करेंगे? बाकी हम रेवेन्यू रिजर्व से ले लेते हैं, ठीक है? चलो तो विल कंसीडर रेवेन्यू रिजर्व डेबिट। बैलेंसिंग फिगर दीजिए 43,125 माइनस 250 टू इक्विटी शेयर बायबैक। ये मैं क्या कर रहा हूं? कंसिडरिंग माई बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज 43,125, एंट्री पास कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे आपको जो टेस्ट 3 का ये 20 हम क्यों नहीं कर सकते उसका लॉजिक समझाना है। तो टोटल बायबैक अमाउंट आएगी 8,62,500. ओके, सेकेंड एंट्री आएगी, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट कर दिया है, प्रीमियम का एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अभी रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर करेंगे हम,
कितना CRR, CRR कितना होगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, क्योंकि हमने प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं किया है, ठीक है। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 431250, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन, अभी क्या कैश में वापस बैंक में वापस दे दो, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट 862,500 to bank. So this much is clear. अभी हमें प्रूव करना है कि हमने ये जो किया है वो गलत है। बायबैक प्राइस आप 20 नहीं ले सकते हो, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? चलो ये हम टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कि बायबैक के बाद डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। चलो वो टेस्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो डेट है, ओके पहले लिख लो पेड अप कैपिटल। तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 1250, रेवेन्यू रिजर्व वी हैव 15 lakh, then after we are supposed to consider free reserve only. Yes, free reserve only. Security premium, so we have security premium 250, balance given, and profit and loss account 125. So this is our present equity 31,25,000, and we have a total debt of rupees 4525. ओके सही है, ठीक है। चलो अभी हमने बायबैक क्या किया, 43125 शेयर्स बायबैक किए। तो शेयर कैपिटल कितनी रिड्यूस होगी? 431,250। ओके, शेयर कैपिटल कितनी रिड्यूस हुई? 431,250। ओके, यहां पे रेवेन्यू रिजर्व में कितना रिडक्शन आएगा? रेवेन्यू रिजर्व में कितना रिडक्शन आएगा? एक तो ये 181 आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। 181,250 और 431,250। सिक्योरिटी प्रीमियम 250 गॉन। ओके चलो अभी बैलेंस दीजिए। तो मेरे इक्विटी शेयर कितने बचेंगे? ये क्या है? 8,18,000. 18,750. ओके, ये क्या है? इक्विटी आफ्टर बायबैक। ओके, बायबैक के बाद इक्विटी की पोजीशन क्या है? ओके, यहां पे रेवेन्यू यहां 8,87,500. ओके, हमने यहां पे सीआरआर क्रिएट किया। हाँ, सीआरआर तो क्रिएट किया है। कितना सीआरआर क्रिएट किया? ओके, 431,250। 431,250 कितना सीआरआर क्रिएट किया? 431,250, ठीक है। ओके, अभी देखिए, डू वन थिंग, गिव मी द टोटल ऑफ दिस फिगर। ये इतना टोटल दे दीजिए। सॉरी, टोटल 8,18,000, 8,87,000, 1,25,000 का टोटल दीजिए। $18 lakh 31,250. अभी ये दोनों का टोटल दे दीजिए। मतलब ये इसमें हम सीआरआर भी इंक्लूड कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारा डेट इक्विटी बायबैक के बाद कितना होना चाहिए?
2:1। अभी चेक कीजिए ये रेशियो 2:1 आ रहा है, चेक कीजिए ये जो रेशियो है डेट टू इक्विटी आफ्टर बायबैक, उसमें 2:1 आ रहा है। यस Yes, sir. And कभी रॉन्ग प्रूव कैसे हुआ? आपने बताया रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो करेक्ट हुआ। करेक्ट कब हुआ? जब हमने सीआरआर ऐड किया, हमने इस इक्विटी में सीआरआर को भी ऐड कर दिया। टेल मी, सीआरआर फ्री है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री है, तो हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यस, मतलब हमारी इक्विटी ये नहीं है, हमारी इक्विटी आफ्टर बायबैक ये होगी। और अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो 2:1 से ज्यादा हो जाए। हेंस प्रूव्ड कि ये जो बायबैक है 20 रुपीज, वो हम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है तो देख लीजिए, क्योंकि ये सब मैं इरेज करने वाला। ठीक है, अभी मैं करेक्ट सिचुएशन समझाऊंगा आपको। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट इट, 2 minutes, I'll be back. ओके चलो ओके, अभी ये क्लियर है? ये गलत क्यों है, क्लियर हो गया आपको? तो ये गलत है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इतना बताना चाहता हूं कि यहां हम बायबैक डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रिडक्शन, मैक्सिमम रिडक्शन का फिगर है, उसमें हमें 2 बाइफर्केशन करने पड़ेंगे। एक तो बायबैक अमाउंट होगा, और एक होगा अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। क्या होगा? बायबैक अमाउंट। और दूसरा क्या होगा? एक होगा बायबैक अमाउंट और दूसरा क्या होगा? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। सेपरेटली कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सीआरआर फ्री नहीं है, सीआरआर फ्री नहीं है, सीआरआर को हम पेड अप कैपिटल में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके।
तो अभी ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेट इक्विटी ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बोलिए, चलो क्या कर सकते हैं बोलिए। ओके, टेल मी बायबैक अमाउंट क्या है, अभी शॉर्टकट देख लो, ठीक है। let us assume the number of shares to be bought back is x. Let us assume the number of shares to be bought back is x. So tell me number multiplied by buyback amount 20x plus number multiplied by amount transfer to CR. CRR में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो हमें ये जो फिगर है मैक्सिमम रिडक्शन वो कितना होगा, 30x इज इक्वल्स टू 862,500। तो x दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक विल बी हाउ मच, डिवाइडेड बाय 30। सो 20 के बदले हमें 30 में डिवाइड करना है। यस, तो बात है सर 30 से क्यों डिवाइड करेंगे, बायबैक प्राइस तो 20 है। बट मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया, अभी ये भी हम प्रूव करके बताएंगे कि ये जो है वो करेक्ट है, 30 जो है वो करेक्ट है। और ये लॉजिक बायबैक के कोई भी सम में देख लो, होगा ही होगा, सिंपल लॉजिक है। अगर यहां आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉड्यूल में जो एक्स वाई की मेथड दी है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बायबैक अमाउंट नंबर्स आ जाएंगे ये शॉर्टकट से, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 862,500 डिवाइडेड बाय 30, गिव मी द नंबर ऑफ शेयर्स नाउ, गिव मी द नंबर ऑफ शेयर्स नाउ। 28,750। 28,750। सर ये भी प्रूव कर दो, आपने जो प्रूव किया था 43125 इनकरेक्ट आंसर है, तो अभी प्रूव कीजिए कि 28750 करेक्ट आंसर है। 28750 इज द करेक्ट आंसर। हाउ, फेस वैल्यू क्या है 10, प्रीमियम क्या है 10, पीबी बायबैक प्राइस क्या है 20। ठीक है, चलो एंट्री पास करो, अभी एंट्री तो हमने लिखी हुई, चलो एंट्री पास करो। 2,87,500। ओके, प्रीमियम तो 250 ही है, यस। तो 37,500 वी विल यूज फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व। टोटल बायबैक का अमाउंट आएगा, गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक, गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक। Is it 575? हेलो, कहां पे गए? रेवेन्यू, CR अमाउंट ट्रांसफर टू CRR 287,500, 287,500। ठीक है, तो बायबैक अमाउंट क्या होगा? ये 575 करेक्ट है, आंसर तो दीजिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलो नो इश्यूज। अभी माइनस कीजिए, हो गया 287,500। रेवेन्यू रिजर्व में से कितना माइनस होगा? सर नहीं आ रहा, यू आर गिविंग द आंसर, ओके आई एम नॉट ओके नाउ ऑडिबल, यस। ओके, तो रेवेन्यू रिजर्व में से यूज करूंगा मैं 37,500 और 287,500। प्रीमियम पूरा यूज हो गया, पीएनएल। तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो आफ्टर बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल दीजिए।
ये सारे कैलकुलेशन में 3 बार करूंगा। ओके, शायद कोई दिक्कत, नो इश्यूज। चलो, इज इट 9,62,500? ओके, इज इट 1175 and 0 and 125? तो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कितना आएगा? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कितना आएगा? 287,500। तो अभी हमें सीआरआर को इक्विटी का फॉर्म पार्ट कंसीडर नहीं करना है, उसके अलावा ही, उसको कंसीडर ना करके ही हमें बायबैक का जो टेस्ट नंबर 3 है वो सेटिस्फाई करना है। अभी ये टोटल करो, इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक। अभी ये टोटल कीजिए, इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक। इज इट 2260? एग्जैक्टली। तो अभी 2:1 का रेशियो आ रहा है। परफेक्ट, यस, हो गया, हेंस प्रूव्ड। इट मीन्स, सर अभी क्या करना है वो बता दीजिए। ठीक है, चलो, अभी ये करना है कि जब भी यहां पे टेस्ट नंबर 3 में जो भी मैक्सिमम रिडक्शन आएगा, सर वो मैक्सिमम रिडक्शन कैसे आता है? पहले कीजिए टोटल ऑफ डेट, उसका मैक्सिमम कीजिए 2:1, तो आएगा प्रपोज्ड इक्विटी और मिनिमम इक्विटी, और उसको कंपेयर कीजिए प्रेजेंट इक्विटी जो हमने टेस्ट 1 में निकाल के रखा है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, वो आएगा मैक्सिमम रिडक्शन। मैक्सिमम रिडक्शन के आप 2 पार्ट कीजिए, एक बायबैक अमाउंट 20 और एक अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर 10। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर इज ऑलवेज अ फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक 10, और ये दोनों का टोटल डिवाइड कीजिए। मतलब अभी सिंपल देखिए हम, अगर मेरी बायबैक अमाउंट 30 है, फेस वैल्यू 10 है, तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? मेरी बायबैक अमाउंट 30 है और मतलब 20 प्रीमियम है, 10 फेस वैल्यू है, बायबैक अमाउंट 30 है, तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? $40 से। वेरी इजी, यस 40। ठीक है, अगर मेरी बायबैक अमाउंट 50 रुपीज है, अगर मेरी बायबैक अमाउंट 50 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है, तो बायबैक अमाउंट प्लस ट्रांसफर, क्योंकि ये जो रिडक्शन है उसके 2 ही बाइफर्केशन हो गए, एक बायबैक अमाउंट और एक अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। तो सिंपली यहां पे जब हम टेस्ट 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? अगर बायबैक अमाउंट 20 है तो उसमें फेस वैल्यू जोड़ के, फेस वैल्यू ऐड करके डिवाइड करेंगे। वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी 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 सिंपल लॉजिक। ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो अभी हमें क्वेश्चन में आना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सब प्रूव किया, अभी हम बैक टू द क्वेश्चन। ये मैंने सारा जो कैलकुलेशन किया वो सिर्फ टेस्ट 3 का लॉजिक, और मैं यहां पे क्यों डिवाइड करूंगा 30, उसका लॉजिक देने के लिए कैलकुलेशन किया। अभी हम ये कैलकुलेशन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो यू कैन पोज इट एंड नोट डाउन दिस। ओके, ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस। अभी ये मैं इरेज करने वाला हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है जो एक्चुअल है 25,000 शेयर्स, वो करना है। ठीक है, चलिए, तो इज दैट क्लियर? तो अभी देखिए, कम बैक टू द क्वेश्चन। टेस्ट 3 का लॉजिक क्लियर है, तो कम बैक टू द क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे हम? मैक्सिमम हमें कितने शेयर से बॉट बैक करने हैं? वॉन्ट्स टू बाई बैक 25,000। अभी टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का अभी हमारे पास आंसर है, तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या नोट देंगे कि भाई मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम बायबैक numbers will be list of the above। मतलब ये जो तीनों टेस्ट है उसमें जो लोवेस्ट फिगर है वही हमारा बायबैक का फिगर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यही फिगर आया। अभी देखिए,
यहां पे आपने टेस्ट 3 में कुछ लोचा लबाचा किया, ठीक है, तो फिर 28750 नहीं आए और वही हमारा आंसर है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी वांट्स टू बाय बैक कितने शेयर्स, कंपनी वांट्स टू बाय बैक कितने शेयर्स, 25,000। तो क्या है, यस इट इज विद इन लिमिट। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था यहां पे कि बताइए विथ योर कैलकुलेशन बताइए कि ये जो बायबैक करना चाहती है कंपनी 25,000 शेयर्स, वो कंपनीज एक्ट के लिमिट में विद इन आता है या नहीं आता है। यस हमने बोला यस आता है। तो हम 25,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमें एंट्री किसके मुताबिक करनी पड़ेगी, एंट्रीज 25,000 शेयर। तो ये आपने कितनी बार एंट्रीज की, अगर समझाने के लिए की थी। अभी हमें आंसर में क्या एंट्रीज करनी है, 25,000 ओनली। ओके, हमें ये 43,125 शेयर्स की एंट्री नहीं करनी है, 28750 से भी एंट्री नहीं करनी है। जस्ट मैं आपको प्रूफ दे रहा था, वो फॉर्मूला प्रूव करते हैं ना, हैंड्स प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, तो अभी प्रूफ हो गया, तो प्रूफ का कोई काम नहीं है। प्रूफ हो गया तो अभी प्रूफ का कोई काम नहीं। अभी हम क्या करेंगे, हाँ हो गया ना प्रूफ, ठीक है। चलिए तो फिर इक्विटी शेयर, हाँ अभी हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आएगी, अभी हमारा जो बायबैक है वो है 25,000 शेयर्स। ओके, तो 25,000 शेयर्स की बायबैक की एंट्री बोलिए। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू फेस वैल्यू 10, 250, प्रीमियम 10। अभी वो चार्ट बनाना पड़ेगा, बनाओ। ठीक है, उसमें प्रेफरेंस रिडम्पशन नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो हम प्रीमियम है, ठीक है, बट वो सेम टू सेम है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 250 और बायबैक आएगा टोटल 5 लाख। रेवेन्यू रिजर्व सीआरआर कितना करेंगे हम क्रिएट, 250 और अमाउंट कितना पे करेंगे, 5 लाख। इज दैट क्लियर? तो नाउ हमारी सिचुएशन क्या होगी, अभी हमें ये सिचुएशन कंपेयर नहीं करिए 2:1 होगा या नहीं होगा, अरे कम ही है। ठीक है, अभी देखने की जरूरत नहीं है, कम ही है। हियर इट विल बी 250, रेवेन्यू रिजर्व विल बी 250, हियर आल्सो इट विल बी 250। ओके, यस यस। चलो, तो अभी मुझे फाइनली लास्ट टाइम, ओके लास्ट टाइम, और सीआरआर भी आएगा 250। ठीक है, तो फाइनली लास्ट टाइम दे दीजिए 10 लाख। क्लियर, 1250 नील 125 करेक्ट, और 250 आएगा, यहाँ पे 250 आएगा। तो ये मैंने 25,000 के मुताबिक एंट्री पास कर दी है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इक्विटी शेयर कैपिटल 250, सिक्योरिटी प्रीमियम 250, टू इक्विटी शेयर बायबैक 5 लाख, सीआरआर ट्रांसफर 250। तो ये हमारी नॉट 1 होगी 10 लाख, ये हमारी नॉट 2 में तो सीआरआर को लेना ही है जब बैलेंस शीट बनाओगे तब। ठीक है, यस क्लियर है इतना? ओके, बैलेंस शीट आपको होमवर्क में करनी है। अभी आप क्या करोगे कि सारी की सारी टेस्ट लिख लो, सारी की सारी टेस्ट लिख लो, नोट डाउन दिस थिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चलो, ओके, दोबारा से एक बार समझा देता हूं। 3 टेस्ट है। नंबर 1, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। तो हमने पेड अप कैपिटल की 1250, फ्री रिजर्व रेवेन्यू सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल 3125, उसका मैक्सिमम 25%, और उसको डिवाइड किया हमने बायबैक प्राइस से। क्यों सर बायबैक प्राइस से क्यों डिवाइड किया? यहां पे 30 का लॉजिक मत ऐड करना, ठीक है, बिकॉज यहां पे तो हमें बोला है मैक्सिमम बायबैक अमाउंट के तौर पे आप कितना कर सकते हो, तो 781,250, और बायबैक की अमाउंट क्या है 20, so that will be number 39062। शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो भी नंबर है वो नंबर में हम मैक्सिमम 25% शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं, तो वो है 31250। अभी डेट इक्विटी का टेस्ट, टोटल डेट कीजिए प्रेजेंट, उसको 2:1 रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, तो हमें आएगा प्रपोज इक्विटी और मिनिमम इक्विटी।
अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए खास देखिए, क्योंकि इसके बाद जो सम आने वाला है, ओके, इसके बाद नहीं, बट वो जो आपको एग्जाम में पूछा था जुलाई 21 में, और वो भी जो कई बार आता है, उसमें क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट इक्विटी प्रपोज इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी प्रपोज इक्विटी। तो प्रेजेंट इक्विटी है 3125, उसमें आप प्रपोज मतलब फ्यूचर में 2:1 करेंगे, तो मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, उससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते उसका डिफरेंस। और वो डिफरेंस में हमें दोनों को समझाना है, इन दो लोग को समझाना है कि ये बायबैक अमाउंट 2 भी ले ले और ये ट्रांसफर टू सीआर 2 भी ले ले, चलो दोनों का टोटल 862,500 ही आना चाहिए मैक्सिमम। ओके, तो हम 30 से डिवाइड करेंगे नंबर को और हमारा नंबर आ जाएगा थर्ड टेस्ट का 28750, और तीनों में से जो लोवेस्ट है वो हमारी होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, और हमें जो बायबैक करना है दैट शुड बी विद इन दैट लिमिट। अभी मानिए, चलो मानिए आप बोलते हो हमें 30,000 शेयर्स बायबैक करना है, तो हम आंसर क्या देंगे, नो नो नो, आप 30,000 शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो सीलिंग है वो है 28750, तो आप 28750 ही बायबैक कर सकते। बट ये सब में तो हमें दिया गया है 25,000। ओके, यू आर विद इन लिमिट, यू कैन बाय बैक 25,000 शेयर्स। एंड अगर आप सही है 25,000 यस बोलते हैं, तो फिर 25,000 की एंट्री करनी है और फिर वो कैलकुलेशन, सेट सिंपल। ओके, चलो नोट डाउन। थोड़ा लॉजिक के हिसाब से हमने ये सब में थोड़ा टाइम लगाया। ओके, तो अब लॉजिक क्लियर है, तो हम टेस्ट 1 2 3 हर बार प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब टेस्ट 3 हर बार प्रूव नहीं करेंगे। अभी हमें वो सेट हो गया कि मैक्सिमम रिडक्शन में क्या दो फिगर्स आते हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे। अगर बायबैक प्राइस 20 है तो डिवाइड करेंगे 30 से, अगर बायबैक प्राइस 30 है तो डिवाइड करेंगे 40 से। बट उसमें फेस वैल्यू 10 होनी चाहिए। फेस वैल्यू जब चेंज होगी तो आपको ध्यान रखना है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है फेस वैल्यू 50 हो और प्रीमियम 20 हो, फेस वैल्यू 50 हो और प्रीमियम 20 हो, तो क्या करना पड़ेगा, वो बायबैक प्राइस है 70 और उसमें फेस वैल्यू जोड़ के हमें डिवाइड करना है 120, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखना। तो अभी नोट डाउन कीजिए, चलिए। थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया हमने इस सम में, बट ये सम का जो लॉजिक है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये टाइम ज्यादा लिया इस सम में। ओके, अगर नोट डाउन हो जाए तो बता दें।
Okay, you can note down now journal entries. Narration is must, mind well. Okay. अभी कुछ बाकी है नोट डाउन करना तो बताइए, तो मैं स्क्रीन पर रखता हूं. Yes, sir. ये last one. ओके. Hello, sir. यस. सर इसका जो कंपेरिजन करना है ना वो यहाँ पे टोटल होगा ना 10 लाख और 10,50,000 और 1,25,000. यहाँ पे कंपैरिजन होगा 45-25 और यहाँ पे 10 लाख प्लस 1250 प्लस 125. ये टोटल कीजिए. इज इट 20? इज इट 2375? Yes, sir. हाँ, अभी कंपेयर कीजिए, ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए. रेशियो क्या आता है? तो यहाँ पे 52,500 नहीं है ना. नहीं नहीं नहीं, वो मैक्सिमम है. मैंने ये क्या बताया, टेस्ट क्या है, डेट टू इक्विटी शुड बी लोअर देन और इक्वल टू 2:1, मतलब मैक्सिमम है. इससे कम होगा चलेगा, क्योंकि हम बायबैक कम कर रहे हैं ना. बायबैक कितना कर रहे हैं? 28,750 इज मैक्सिमम. वी आर डूइंग बायबैक ऑफ ओनली 25,000, तो वो कम ही आएगा. मतलब यहाँ पे रेशियो 2:1 से कम ही आएगा. देखिए कितना आ रहा है रेशियो डेट इक्विटी. रेशियो बताइए डेट इक्विटी का क्या है, चलेगा पॉइंट में. कितना आता है रेशियो? 1.9:1. 1.9:1. ओके, सो 2 से कम ही होगा या फिर एग्जैक्टली 2 होगा. 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. टेस्ट क्या है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. डेट इक्विटी आफ्टर बायबैक शुड नॉट एक्सीड 2:1. तो कम होगा चलेगा, क्योंकि कम इसीलिए होगा बिकॉज हम कम शेयर बायबैक कर रहे हैं. हम मैक्सिमम सेलिंग में जितना बायबैक करना है उतना नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कम ही होगा. बट वो जो कंपैरिजन करनी है डेट इक्विटी रेशियो में, वो होगी टोटल डेट. टोटल डेट में ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं करेंगे चलो करंट लायबिलिटी एक्सक्लूड कर दो, नहीं. टोटल आउटसाइड डेट, फिर वो करंट है नॉन करंट है सब ले लेंगे. ठीक है, डेट टोटल डेट टू इक्विटी. और इक्विटी में क्या हम कंसीडर करेंगे, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व विथ सिक्योरिटी प्रीमियम. दैट्स इट. ओके, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर. परफेक्ट. Then shall we go ahead?
चलो अभी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 4 में आ जाइए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 हो गया, यस। अभी एग्जाम्पल 4 में आ जाइए। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। See, I have seen many of times student used to do the analysis. Okay, I am not against any analysis. See, you can see to ABC analysis of various faculties and whatever, बराबर। So I don't mind with doing analysis कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बट कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कैसे जज करते हैं, आपको मैं स्मॉल एग्जांपल देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर सम है, ये जो चैप्टर का सम है, वो सेम टाइप ऑफ सम लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था जुलाई 21 में। तो अभी ये नवंबर 21 में ये नहीं आएगा, मई 22 में ये नहीं आएगा, ये हमें नहीं करना है। डोंट बी द एनालिटिक्स, ओके, जस्ट डू एवरीथिंग। क्योंकि क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये मई 16 में जो क्वेश्चन पूछा था, मई 12 पहले ये ओल्ड सिलेबस था। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था कि जो बायबैक, डिबेंचर रिडम्पशन, ईसॉप, अंडरराइटिंग, वो चारों का जो बंच था उसमें से वो 2 क्वेश्चंस पूछते थे। तो क्या होता है, एक बार बायबैक आता था, एक बार डिबेंचर, एक बार बायबैक आता था और एक बार ईसॉप, एक बार अंडरराइटिंग, ऐसा मतलब सीक्वेंस था। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था तो अभी ये दोबारा नहीं पूछेंगे, ऐसे करते थे। तो मैं आपको ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए देखिए देखिए, अगर आप ऐसा सोचोगे, कैसा कैसा सर कैसा, ये मैंने कई सारे सम्स जो लेटेस्ट है वो सब होम असाइनमेंट में भी लिए, क्लास वर्क में लिए, फिर होम असाइनमेंट में भी लिए। तो होम असाइनमेंट में मई 16 का भी जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फिर बाद में क्या हुआ, नवंबर 16 में दोबारा बायबैक पूछ, तो फिर स्टूडेंट बोलते मई 16 में आ गया, नवंबर 16 में आ गया, अभी मई 17 में तो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो फिर मई 17 में भी आया 2 सिचुएशन। अभी ये जो 2 सिचुएशन वाला सम है वो 8 मार्क्स में पूछा था ओल्ड सिलेबस में। तो ये 2 सिचुएशन वाला सम 10 मार्क्स से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। पर अभी देखिए यहाँ पे जो जुलाई 21 है में वो आया, ये जुलाई 21 2 सिचुएशन वाला 15 मार्क्स में सम आ गया। देखिए वो डिजर्व करता है ओनली 10 मार्क्स मैक्सिमम, बट फिर भी आपको 15 मार्क्स में ये पूछा, और यहाँ पे दोनों सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना है। तो डोंट वरी, वी हैव 3 सिचुएशन सम्स ऑल्सो। बट कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप अपने हिसाब से काटाकुटी मत की, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आएगा, ये सब नहीं आएंगे, सब कुछ करना है। आपको 80+ चाहिए, हाँ, तो सब कुछ करना पड़ेगा। 80+ आते आराम से आते। एडवांस अकाउंट और एफएमई को, ये प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट में 80+ आराम से आते। हाँ, थिंग इज दैट मेरा जो सारा मटेरियल वो आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ये कर लो, आपको मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन लेटेस्ट एग्जाम सम्स भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग ज्यादा एनालिसिस में मत लगाइए, अपना दिमाग ज्यादा पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, following is a summarized balance sheet of Messrs complicated limited, okay, now see, ये कॉपी किया है सम, कौन सा वाला, ये मैं 12 का जो सम है वही कॉपी किया है। कैसे कॉपी किया है, देख लो, फिगर भी कॉपी किया है, बट उसको ये क्या बोलते हैं कि ये ऐसे ही कॉपी कर देंगे, नहीं चलेगा। एक काम करते, क्या करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड है। हाँ चलिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन किया है, सिंपल देख लीजिए। ये क्या कर दिया, 4650 का 4650 ही रखा। यहां पे जो करंट एसेट 30 लाख है वो कर दिया 40 लाख, 10 लाख ज्यादा कर दिया, क्योंकि हमें आपको कंफ्यूज करना है। क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल 3 सॉल्व किया वो तो इजी था सर, इजी था, यस, ओके, हाँ, वो मैंने लॉजिक थोड़ा डिटेल में समझाया था,
फिर बाद में इजी हो गया। शेयर कैपिटल 1250। अभी क्या करते हैं, बोनस शेयर अलग से, अबे कोई ऐसे करते हैं, बोनस शेयर अलग से देते हैं, कोई बोनस शेयर अलग से दिया है, इसका क्या मतलब है, बोनस शेयर अलग देने का क्या मतलब है, बोनस शेयर अलग थोड़ी लगते हैं, ये दोनों साथ में ही लिखते हैं। तो टोटल इक्विटी शेयर आ गया 1350। अभी ये स्टूडेंट यहां पे क्या मिस्टेक करेंगे, हमने जो टेस्ट किया, कौन सा टेस्ट, टेस्ट नंबर 2, यहां पे हम क्या करेंगे 125,000 इंटू 25%। ओके, तो हम भूल से यहां पे क्या कर देंगे कि यहीं पे भी 125,000 शेयर्स ऑफ 10 है, ठीक है, तो 125 का 25% कर दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये जो बोनस है वो है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो हमारे टोटल शेयर्स हुए 135। तो भाई ऐसा लिखो ना 13,50,000 शेयर्स, क्यों ऐसा नहीं लिखते, बस हमारी मर्जी, हमें आपको कॉम्प्लिकेट करना है, कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो ये खास देखना, टोटल कैपिटल लिखेंगे हम 135। ओके, नेक्स्ट, ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ईसोप में आएगा, बट उसको हम प्रेजेंट करते हैं अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस। बट क्या ये फ्री है, क्या ये फ्री है, नहीं, फ्री नहीं है, इग्नोर इट। हमें तो पेड अप कैपिटल चाहिए, पहला पेड अप कैपिटल क्या मिला हमको, पेड अप कैपिटल मिल गया 13,50,000, पेड अप कैपिटल मिल गया हमको 13,50,000। शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व सरप्लस से हेड में आएंगे, नॉट नंबर 2 बनाएंगे तब। ओके, ये जो थर्ड का मैंने बैलेंस शीट होमवर्क में दिया है, ठीक है, करके आना। हाँ, फिर रेवेन्यू रिजर्व फ्री है, यस, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री है, यस, पीएनएल फ्री। अरे सर ये तो अमाउंट भी सेम टू सेम दिया है, मैंने बोला यही क्वेश्चन लिया है, बट आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए थोड़ा और मिक्स किया है, ठीक है। ये सिंपल इडली है, ये फ्राइड इडली है, ठीक है। चलो, कैपिटल रिजर्व फ्री है, नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री है, नहीं, नहीं है फ्री, तो हम पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड क्या होगा, रिजर्व्स और करंट लायबिलिटी, इज अ करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड लायबिलिटी में आएगा, सो डेट, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डेट। 12% डिबेंचर डेट, secured unsecured loan debt, current liabilities debt. What about this 2 lakh, what about this 2 lakh, application money received for allotment due for refund। भी क्या होता है, एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गई, ठीक है, तो हमें वापस करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, तो वो हमारा डेट है, तो डेट में इतना टोटल आएगा। सिंपल, कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, काउंट मत करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री नहीं है, काउंट मत करना, नॉट नंबर 2 में काउंट करेंगे। बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब ये सब रिजर्व सरप्लस में लिखेंगे, इतना इतना। बट हमें क्या करना है, सर ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरे सही, यही क्वेश्चन कॉपी किया है, क्या, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच, बायबैक की प्राइस भी क्या है 20, सेम टू सेम, आर्टिकल में ऑथोराइज हो गया, पेमेंट फॉर द बायबैक विल बी मेड आउट ऑफ, कैलकुलेशन कीजिए, क्या कीजिए, वेदर बायबैक इज विद इन द लिमिट, तो सेम सम है, अमाउंट भी सेम है, सिर्फ क्या किया है, थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया। तो अभी ये होमवर्क में हो जाएगा, वेरी सिंपल, जो कॉम्प्लिकेशंस था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेस्ट 1 में क्या करेंगे, टेस्ट 1 में क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल लेंगे 1350, पेड अप मतलब इन्होंने क्या किया है, ये सम ऐसे बनाया है, ये सम ऐसे बनाया है फोर्थ, कि आप तीनों टेस्ट में गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, यहां पे पेड अप कैपिटल 1350 लेनी है, वहां आप लोचा लगाएंगे, ठीक है, फिर रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी पेमेंट, पीएनएल, इतनी ही अमाउंट आएगी, बट आप कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो सब गलती से ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर्स में बोनस इग्नोर कर सकते हैं, फिर यहाँ पे डेट में अनपेड डिविडेंड है, शेयर आउटस्टैंडिंग है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, शायद आप ना भी लें, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट आपके रॉन्ग हो ऐसा उन्होंने ट्राई किया है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेक्ट करेंगे। समझ में आया, ओके, क्लियर है, होमवर्क में हो जाएगा May 16 का सम। फिर भी आपको कोई डाउट है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा, ओके।
बट फिगर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि हम ये रिजर्व में काउंट, मतलब प्री रिजर्व में काउंट नहीं करेंगे, ये भी प्री रिजर्व में काउंट नहीं करेंगे, बट बैलेंस शीट के टाइम पर जब आप नॉट नंबर 2 देंगे, हाँ वहां पे तो रिजर्व आएंगे क्योंकि वहां पे प्री भी आते हैं और स्पेशलाइज भी आते हैं, सभी रिजर्व्स वहां पे आते हैं। और सीआरआर को लेना मत भूलना क्योंकि एनीवे वी आर गोइंग टू क्रिएट द सीआरआर। और ये जो एग्जांपल 4 है उसकी एंट्री तो यही आएगी क्योंकि शेयर्स तो 25,000 ही है, ठीक है। जस्ट ये जो 3 टेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ये एग्जाम्पल 4 क्लियर है आपको? तो पहले हमने एग्जाम्पल 1 2 3 किया, अभी मैंने 4 एग्जाम्पल होमवर्क में दिया है, ठीक है। चलो बोलिए, कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बताइए, कुछ डाउट है तो। हेलो सर। यस बोलिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो तीन कंडीशन काउंट करने के बाद भी वो 25,000 नहीं होता है, उससे कम होता है, तो वो वही नंबर लेना पड़ेगा ना। हाँ वो हो सकता है, लाइक सी यहाँ पे, हाँ तब नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। अगर ये तीनों का जो लोवेस्ट फिगर है, नंबर्स है, वो 25 से ज्यादा होगा, ओके, वो 25 से ज्यादा होगा तो फिर 25 आएगा। बट अगर वो 25 से कम है, सोचिए यहाँ पे वो टेस्ट का आंसर आता है 22,500 शेयर्स ओनली, देन यू कैन गो फॉर 22,500 शेयर्स ओनली, ठीक है। हाँ उसके मुताबिक चेंज हो सकता है, ठीक है, क्लियर। बट यहां पे क्या है, मुझे पता है आंसर इसलिए बट वो चेंज हो सकता है, यस। ओके क्लियर है अभी? हाँ ये तो 2 सिचुएशन वाले सम ये 15 मार्क्स में पूछते हैं जुलाई में, ठीक है, वो 8 या 10 डिजर्व करते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 सिचुएशन का सम, देखिए 3 सिचुएशन। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, अभी टाइम हो गया है। ये सम ले लेते हैं, टाइम हो गया है आर्टिकलशिप का। यस सर, मुझे वापस जाना है। वेरी गुड, ये आर्टिकलशिप, ठीक है, चलो नो इश्यूज। ओके नहीं, होमवर्क होमवर्क देना है, आप भूलवा देते हो। होम असाइनमेंट, चलो होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट में या क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी अनाउंस द बायबैक, कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया है भाई, आपको टेस्ट नहीं करनी है, हमने बायबैक कर दिया, आप सिर्फ एंट्री देखो, बैलेंस शीट देखो। एग्जाम्पल 4 होमवर्क, क्वेश्चन 4 होमवर्क, कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एंड बॉट बैक, वो भी कर दिया, टेस्ट वेस्ट कुछ सेटिस्फाई नहीं करना है, आप सिर्फ एंट्री बोलो, बैलेंस शीट लिखो, ठीक है। 5 ये 5 में भी अनाउंस बाय बैक हो गया, सब कुछ हो गया, भी होने के बाद आप बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर एंट्री, थोड़े सम में होमवर्क में ज्यादा दूंगा, आपको पता है सिस्टम मेरा, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन 3 4 5 6 इतने ही, ठीक है, होम असाइनमेंट। अभी ये 2-3 सिचुएशन वाले सम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है, नो इश्यूज। चलिए होम असाइनमेंट 3 4 5 6, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इनफ करनी है हमें, क्योंकि जितनी आप अनसोल्व प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। और कई बार आप ऑडिट करते हो, वो नहीं करना है, ठीक है, आपको हर एक सम कैलकुलेट करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।